پچھلی ویڈیو میں آپ نے پوزیشن ویکٹر کا روپ بدلنا یعنی اسے ٹرانسفارم کرنا سیکھا تھا، اور اب ہمیں 3 عدد پوزیشن ویکٹرز دیے گئے ہیں. P1 جو کہ ہے 2 1، پھر ہے P2 جو کہ ہے -2 اور 0، جبکہ P3 ہے 0 2، جن کے روپ اس ٹرانسفارمیشن میٹرکس 2 1 -1 اور 2. سب سے پہلے تو ان پوزیشن ویکٹرز کو پلاٹ کر کے دیکھتے ہیں. P1 ہوگا 2 اور 1 یعنی یہاں. P2 ہے -2 اور 0 یعنی یہاں، جبکہ P3 ہے 0 اور 2 یعنی یہاں. اور ان کو میں آپس میں جوڑتا ہوں. ارے یہ کیا؟ یہ تو ایک مثلث ہے. خیر اتنی حیران کن بات بھی نہیں ہے. بہرحال فضولیات سے پرہیز کرتے ہوئے سیدھے کام پہ آتے ہیں. تینوں ویکٹرز کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ٹرانسفارمیشن میٹرکس سے ایک ایک کر کے ضرب دیجیے. تب تک میں کچھ کھا پی کر آتا ہوں. جی بھائی، تو کتنی محنت لگی؟ اب ظاہر ہے ضرب دینے کے لیے یہ سب تو کرنا ہی ہوگا، مگر اتنی محنت کا نہ تو مجھے شوق ہے نہ آپ کو. تو کیوں نہ ہم یہاں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سب کام ایک ساتھ کر ڈالیں. میں کہتا ہوں کہ اس پورے مثلث کو ہم ایک ہی میٹرکس میں کیوں نہ ڈال دیں اور یوں ایک ہی بار میں اس مسئلے کا کام تمام کر دیں. یعنی ٹرانسفارمیشن ویکٹر T ضرب P1 ضرب P2 ضرب P3. اور جب میں ٹھوسنے گیا ہوا تھا تب آپ اس سوال کا الگ الگ جواب حاصل کر ہی چکے ہیں، تو یوں میرے طریقے کی بھی تصدیق ہو جائے گی. اگر صحیح نہ ہو تو کامنٹس میں 2 ہاتھ بھی کر لیں گے. تو شروع کرتے ہیں. یہ ہوا بھائی 2 1 -1 2 ضرب 2 1 -2 0 اور یہ 0 2. اب میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جائز ہے بھی یا نہیں. تو چونکہ T 2/2 کا میٹرکس ہے جبکہ یہ P کا خاندان 2/3 کا میٹرکس ہے، یعنی T کے کالم اور اس P کے خاندان کی روز برابر ہیں، لہٰذا ہمیں یہ رشتہ قبول ہے بھائی. بلکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی اولاد ایک 2/3 کا میٹرکس بنے گی. ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے بھائی، سب ہنسی خوشی رہیں گے. تو چلیے رسومات ادا کرتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا 2 ضرب 2 جمع 1 ضرب 1، 2 ضرب 2 جمع 1 ضرب 1، پھر 2 ضرب -2 جمع 1 ضرب 0، 2 ضرب -2 جمع 1 ضرب 0، اور پھر 2 ضرب 0 جمع 1 ضرب 2، 2 ضرب 0 جمع 1 ضرب 2. چلو یہاں پہ آگے ختم ہو رہا ہے. اور یہ پھر ہوا جناب -1 ضرب 2 جمع 2 ضرب 1، -1 ضرب 2 جمع 2 ضرب 1. پھر آئے گا -1 ضرب -2 جمع 2 ضرب 0، -1 ضرب -2 جمع 2 ضرب 0. تے پھر -1 ضرب 0 جمع 2 ضرب 2، -1 ضرب 0 جمع ب ضرب ب. تھوڑا سندھی ٹچ بھی لائیں اس دفعہ. تو یہ بنا 5 4 2 0 2 4. یہ دیکھیے کہ یہ جو T کو P1 سے ہم نے ضرب دیا تو اب بنا یہ P1
डैश। जब P2 को हमने T से ज़रब दिया तो ये बन गया P2 डैश या P2 प्राइम, और ये और P3 जो था वो बन गया P3 प्राइम। और अब हम इन प्राइम्स को प्लॉट करते हैं। तो ये जो कि था P1, तो P1 डैश आ रहा है 5,0 पे, यानी यहीं। तो ये बना P1 प्राइम या P1 डैश। इसी तरह जो ये आपके पास P2 था, वेक्टर P2, तो P2 डैश बन गया है -4 और 2। -4 और -2 आपका आएगा तकरीबन यहाँ। इसकी ड्राइंग बना देते हैं। ये हो गया आपका P2 प्राइम डैश, P2 प्राइम। और यूं ही अगर P3 प्राइम को देखा जाए तो 2 और 4, यानी 2 हॉरिजॉन्टल पे और 4 यहाँ पे, तकरीबन यहाँ आया। और इन पॉइंट्स को मैं पर्पल लाइनों से जोड़ देता हूँ। पर्पल नहीं होता भाई, पर्पल होता है। दूसरा आया आपका इथे, तो फिर तीजा आया, ये था आपका P3 और ये है आपका P3 प्राइम। अब आप मेरे अमाल का अपने अमाल से मवाजना कीजिए, यानी मेरे और अपने मेथड्स को कंपेयर कीजिए और देखिए कि ये एक जैसे हैं या नहीं। आपको नज़र आएगा कि कुछ अनोखा नहीं हुआ है। बस जैसे आप अलग अलग ज़रब दे के अलग अलग पॉइंट्स निकाल रहे थे, वही सब यहाँ यकजा हो गया है या एक जगह हो गया है। और अब आप इस ग्राफ पर नज़र डालें तो एक बड़ा मुसल्लस दिख रहा है, जो कि दरअसल इस छोटे मुसल्लस का बदला हुआ रूप है। और ये मुसल्लस सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा घूमा हुआ भी है। ये सब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का किया धरा है। इसे पकड़ो जाके। यही चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस मुसल्लस को सेलेक्ट करके जूम करूँ, और बल्कि सिर्फ जूम ही नहीं करूँ, थोड़ा सा घुमा भी दूँ, तो यही चीज़ हो रही है जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के ज़रिए की। यानी मेरी इस हरकत को स्क्रीन पर दिखाने के लिए कंप्यूटर ने यही कैलकुलेशन की है जो मैंने अभी आपको ये हाथ से करके दिखाई। अब बस ये है कि कंप्यूटर में ये काम बिजली की मदद से इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होता है, जिसकी बदौलत मुझे स्क्रीन पर ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ और फ्लॉलेस, यानी इतना रवां और इतना सुथरा नज़र आ रहा है। कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही, कहीं पे भी शेप ब्रेक नहीं हो रही, बल्कि शेप वैसी की वैसी ही रहती है, उल्टा आपको हिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा मैट्रिसेस हमें तमाम तर कायनात समझने में बहुत काम आते हैं, क्योंकि हमारी सारी साइंसी मालूमात का दारोमदार वेक्टर्स पर है। और आपने अभी अपने हाथ से वेक्टर से खेल के देखा, वैसे मेरे हाथ से देखा। खैर, एक आखिरी बात, गो कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 वेक्टर्स पर लगाई, मगर इसका इतलाक इस छोटे मुसल्लस के एक एक पॉइंट पे होता है। आप अगर नहीं जानते तो बताता चलूं कि इस मुसल्लस के एक एक नुक्ते की निशानदेही एक वेक्टर से की जा सकती है। आपकी स्क्रीन पे यही नुक्ते पिक्सेल्स कहलाते हैं, पिक्सेल्स, जिसको अक्सर लोग पिक्सल भी कहते हैं, पता नहीं क्यों। और कंप्यूटर हर एक पिक्सल को एक वेक्टर की मदद से नज़र में रखता है। जब आप एक वेक्टर यानी P1 को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो P1 से मुंसलिक सारे पॉइंट्स ओरिजिन से खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं होगा, P3 फिर यहाँ जाता है। और यही चीज़ P2 के साथ भी होती है और P2 और P3 के दरमियान सारे पॉइंट्स के साथ होती है। इसी तरह P2 और P1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लाइन यूँ जा रही है, ये लाइन यूँ जा रही है, यानी एक एक पॉइंट अपनी जगह से हिला है। इसीलिए हम इन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन नए आने वाले पॉइंट्स को अलग नाम नहीं देते, हम इन्हें प्राइम का नाम देते हैं। ये कोई नया वेक्टर नहीं है, ये वही P की बिगड़ी हुई शक्लें हैं या तब्दील हुई हुई शक्लें हैं।
تو اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ تم کتنے بدل گئے ہو یا تم کتنی بدل گئی ہو، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں بدلا نہیں ہوں، میں پرائم بن چکا ہوں بھائی صاحب۔